Good morning, everyone. In previous class, we have studied some questions related to alternating current that were asked in CBSE examinations. There were some theory questions as well as numerical questions. Today, we are going to solve some previous year board questions, including compartment questions and sample paper questions. These were numericals as well as some conceptual questions also, all right, which were added in the theoretical question. Means in 5 marks question they were asked in part A, B or C in including that theory part. So firstly, this question is from alternating current. The current through two inductors of self-inductance 12 millihenry, 30 millihenry is increasing. See, current through these two inductors is increasing with time at the same rate. Draw graphs showing variation of the first thing. See, we have two inductances, 12 millihenry and 30 millihenry. Current through them is increasing with time. We have to draw the graphs for first one is EMF induced with the rate of change of current in each inductor. Second is energy stored in each inductor with the current flowing through it. And third is comparing the energy stored in the coils if the power dissipated in the coils is the same. This question is asked in CBSE 17 compartment, all India CBSE 17. It is OD outside Delhi. तो 17 कंपार्टमेंट में आया है ये. देखिए, इसमें हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि ये जो इंडक्टर है ये इसके अक्रॉस जो करंट है ये टाइम वेरिंग है. ठीक है, इंडक्टर्स की वैल्यूज तो कांस्टेंट ही रहेगी, 12 मिली हेनरी एंड 30 mH. सो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ ग्राफ. ऑलराइट, ग्राफ based on Faraday law of induction. See, firstly, according to Faraday law of induction, here as we know is equals to minus L di by dt. See, compare this equation with y is equals to mx with zero intercept. mx plus c equation होती है ना, y equals to mx plus c straight line equation. Here if I am taking intercept c as 0, intercept c जो होता है उसको मैंने क्या ले लिया, c equals to 0, then this y is equals to mx. x is variable, y is dependent variable, and this m is actually the slope. So comparing this, here L is the slope which is in negative, so it is negative slope, and y is independent, y is dependent, x is independent. So now make a graph for this Faraday law of induction considering these comparison. So I am making it. Try to understand. Here slope is negative, so or we can say, sorry, just because L cannot be negative, sorry, L is not never negative क्योंकि L तो एक कंपोनेंट की वैल्यू है. तो इसका मतलब ये जो माइनस साइन है ये क्वांटिटी के साथ है. अच्छा, तो यहाँ पे कंपेयर फिर से कर लेते हैं. M जो है वो L है, यानी इसका जो स्लोप है वो L होगा. ठीक है, क्योंकि L तो एक कांस्टेंट वैल्यू है. Y इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, ये कह सकते हैं यहाँ के केस में. यानी यहाँ के केस में, अपने केस में कह सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ di by dt, या di by dt इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ E. ये लिख सकते हैं di by dt इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ E, है ना. तो यानी di by dt की पॉजिटिव वैल्यूज अगर चेंज करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में तो E की वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में चेंज हो रही होगी. तो मैं यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ बनाता हूँ वेयर दिस एक्सिस शोज di by dt change in current with time, and obviously it is with minus sign E, so it is
in negative y direction, so it is minus E, or we can say make like this E. all right, so this is in negative direction में just because it is minus C. अब देखिए L एक कांस्टेंट क्वांटिटी है यहाँ पे, है ना, स्लोप एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कितना कितना है, एक बार 12 mH है, एक बार 30 mH है, एक के लिए, एक इंडक्टर के लिए 30 mH और एक के लिए 12 mH. See here we can plot this graph. There will be two straight line for two different inductors. एक बार मान लीजिए 12 mH वाले के लिए बनाना है, तो 12 mH यानी स्लोप 12 है, 30 mH यानी स्लोप 30 है, तो किसका स्लोप ज़्यादा है, 12 का, तो 12 का कम है. देन slope of straight line for inductor 12 mH will be lesser than the slope of 30 mH line. all right, तो वो, और स्लोप किससे नापना है, इस वाले x एक्सिस से. तो अगर ये है हमारा 12 mH वाला स्लोप, ठीक है, यानी ये जो लाइन हमने बनाई ये किसको शो कर रही है, L इज इक्वल्स टू या L1 इज इक्वल्स टू 12 mH वाली वैल्यू को, स्ट्रेट लाइन होगा और स्लोप कम होगा. अब इससे ज़्यादा स्लोप यानी ज़्यादा स्टीप बनाना है, देन दिस इज L2 विच इज 30 mH. सो दिस इज द ग्राफ showing the variation of EMF induced with the rate of change of current in each conductor. सो हमारा फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, हमें केवल ग्राफ प्लॉट करना है. नाउ नेक्स्ट इज again in third part, what was that, energy stored in each inductor with the current flowing through it. ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड और करंट आई, मान लीजिए करंट जो भी बह रही है एक इंडक्टर में. देखिए एनर्जी क्या होती है फॉर पार्ट बी, इट इज जस्ट बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट फॉर सोल्यूशन. हाफ Li स्क्वायर. सी here this is the expression for energy. पहले L1 is equals to 12 mH and L2 is equals to 30 mH. This we have. Now obviously for the same current, all right, if the same current is flowing, or we can say यहाँ U और I के बीच में, मतलब सेम ही वेरिएशन है I का, और यहाँ पे हमें U निकालना है. L की वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पे U इज प्रोपोर्शनल टू, वी कैन से I स्क्वायर, एंड हियर इट इज ऑल्सो I स्क्वायर, जो भी करंट की वैल्यू हो. ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जब L की वैल्यू 12 mH है तो ये इस वैल्यू को, जब L की वैल्यू 30 mH है उससे हमेशा कम ही रखेगा, क्योंकि वेरिएशन I सेम, अगर वेरिएशन सेम है I का, देन 30 विल बी मोर, 30 मल्टीप्लिकेशन विल बी मोर देन 12 मल्टीप्लिकेशन, L अगर 12 रखें. तो इसका मतलब है कि कौन ज़्यादा स्टीप स्लोप देगा. ये देखो, ये y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर या ax स्क्वायर जो होता है, ये पैराबोला होता है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में पैराबोला है ना. तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है. यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बन रहा होगा, इट इज द रिलेशन बिटवीन I एंड U. सो U विल बी इन y एक्सिस, I विल बी इन x एक्सिस, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं. बट हियर एट 0 दिस विल बी 0, यानी दोनों स्लोप के लिए 0 से ही स्टार्ट होगा हमारा कर्व. देन इट शुड बी पैराबोला विद, देखिए एक 30 इसका स्लोप है, मतलब जो 30 वेरिएशन का स्लोप है, 30 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक में 12, तो जो लेस स्टीप होगा यानी कम झुके होगा, यानी एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा होगा, वो 12 वाला होगा. जो एक्स एक्सिस से थोड़ा ज़्यादा दूर होगा दैट विल बी 30. तो एक ये पैराबोला बना. अगर हमने कहा दिस वन इज 12 mH, ये L1 इज इक्वल टू 12 mH वाले के लिए है, देन दिस मस्ट बी मोर स्टीपर, जो ऊपर की ओर होना चाहिए, देन इट इज 30 mH कर्व एंड इट इज पैराबोलिक. L2 या 30 mH को शो कर रहा है. ठीक है, तो ये कैसा है, पैराबोलिक दिखाना था इसमें, और दिखाना था कि कौन कम स्टीप है कौन ज़्यादा स्टीप है. तो ये दूसरा ग्राफ हो गया. नाउ थर्ड कंडीशन इज, yes, this must compare the energy stored in the coils
इफ द पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल्स इज द सेम। तो देखिए कंपेयर करने के लिए U1 U2 के बीच में कंपैरिजन करना है। तो जब पावर डिसिपेशन सेम हो तो फॉर पार्ट सी, फॉर सेम पावर डिसिपेशन थ्रू देम, as we know the power dissipation across any component is equals to potential drop across that component multiplied by the current across that component. If I say the potential drop is E1 and current is I1 across L1, then it is the power dissipation for E1 I1 and क्या कह रहा है कि दोनों में सेम पावर डिसिपेशन है। अगर मान लीजिए सेकेंड वाली इंडक्टर के अक्रॉस E2 पावर डिसिपेशन होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है और I2 करंट ड्रॉप होता है ना, या करंट उसके अक्रॉस है, तो E1 I1 is equals to E2 I2, we can write it. Then I1 by I2 can be written as E2 by E1. All right, and this is E. E is actually the from Faraday law we can write L2 di by dt, just because current variation is same. यहाँ पे कोई I1 और I2 वाला नहीं है, current change same है दोनों में. And here it is L1 di by dt, so we can write it is actually L2 by L1. So I1 by I2 is equals to L2 by L1. So we have to compare the energies. All right, so U1 by U2 ले लें तभी compare हो पाएगा. So U1 by U2 will be is equals to, as we know, half Li square होता है L1 I square या I1 square, half L2 I2 square. All right, now half cancelled out, it is L1 by L2 multiplied by I1 by I2 whole square लिख सकते हैं, और I1 by I2 क्या है, L2 by L1 है, तो इसको सीधे L2 by L1 लिख लें whole square. So this becomes L2 by L1 only, क्योंकि एक L1 एक L2 कैंसिल आउट हो जाएगा. So this will be L2 is 30 mH millihenry, it is 12 mH, so can be written as 12 दूना 24 2.12 ठीक 2.5. So U1 is actually 2.5 times of U2. It is the energy relation, यानी U1 जो है वो U2 से 2.5 times more है. All right. Now this is what one question is. Now next question, which is a conceptual question, which we have already discussed in theory class also. Why the primary and secondary coils of a transformer are preferably wound over the same core. हमने बताया था ना कि नया जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें हम ट्रांसफार्मर की एक ही कोर पे प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को बाउंड करते हैं. ये आया सीबीएसई सैम्पल पेपर 2019 में. सैम्पल पेपर में वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है या जिनसे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या जिस पे सीबीएसई फोकस करना चाहता है. ऑलराइट, सो हियर एज वी हैव सीन, सी फॉर मैक्सिमम लीकेज एंड मैक्सिमम शेयरिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ऑलराइट, and magnetic flux per turn also to be same for both primary and secondary coil, we usually wound these two primary and secondary on the same coil, same core. ठीक है, तो ये तो मैंने पहले ही बताया था कि फ्लक्स लीकेज ही बढ़ाना है. ठीक है ना, तभी किसके थ्रू, फ्लक्स लीकेज को कम करना है और फ्लक्स की लिंकिंग को बढ़ाना है. सो वी कैन राइट for maximum, और वी कैन से अगर लीकेज की बात कर रहे हैं तो मिनिमम लीकेज होना चाहिए. फॉर मिनिमम फ्लक्स लीकेज, और क्या है, एंड मैक्सिमम शेयरिंग of magnetic flux. लीकेज कम, फ्लक्स शेयरिंग ज़्यादा, एंड जब मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न भी ज़्यादा होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न टू बी सेम, ताकि E1 E2 में कुछ वेरिएशन आए, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी में जो फ्लक्स शेयरिंग है वो भी सेम रहे. सेम फॉर बोथ
the primary and secondary coils. So this is one question which was asked in third part, means in 5 marks question we have generally 3 parts. So first 2 parts were related to transformer theory and third was this in CBSE paper. Alright, so third was a conceptual question. Now another question of similar type: can the current produced by an AC generator be measured with a moving coil galvanometer? ये भी एक करंट था AC जनरेटर के, ये भी एक क्वेश्चन था AC जनरेटर के थर्ड पार्ट में. AC जनरेटर की थ्योरी थी और थर्ड पार्ट ये क्वेश्चन था. ऑलराइट, सो कैन द करंट प्रोड्यूस्ड बाय एन AC जनरेटर बी मेजर्ड विद अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? तो सबसे पहले तो ये याद करिए कि AC करंट का एक साइकिल के लिए जो पावर होता है ना, वो एवरेज पावर 0 होता है. ठीक है, तो अब अगर AC पावर लिंक्ड जो है वो 0 है, तो यहाँ पे ये जो डिवाइसेस होते हैं ये एवरेज पावर पे काम कर रहे होते हैं, एवरेज पावर रिप्रेजेंट करते हैं. और यहाँ पे जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि AC जो है अल्टरनेटिंग करंट, उसकी डायरेक्शंस लगातार चेंज हो रही है और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी लगातार उसकी डायरेक्शंस चेंज होती रहेंगी उसके पिन की. तो उसके यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के थ्रू AC को करंट को नापना पॉसिबल नहीं है. सो वी कैन राइट द करंट produced by an AC generator cannot be measured with a moving coil galvanometer because the average value of AC over a complete cycle is 0. ये हमारा सबसे पहला डेरिवेशन था जब इस चैप्टर को हमने शुरुआत किया था कि एवरेज करंट हमने निकाली थी एक साइकिल के लिए और वो कितनी आई थी? 0 आई थी. तो आप इसको वहाँ पे भी देख सकते हैं और इतना ही सफिशिएंट है इसके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू अगेन AC alternating current. Here two devices are shown, X and Y. Two devices are given with some hints. An alternating voltage of 220 volt is applied across a device X. A current of 0.25 ampere flows which lag behind the applied voltage in phase by pi by 2 radian. If the same voltage is applied across another device Y, the same current flows but now in phase with the applied voltage. See, we are going to underline some important points. Current lags behind the applied voltage. Current जो है वो lag करती है X में applied voltage से. तो ये पहला हिंट हो गया. कितने से? पाई बाई 2 रेडियन से लैग करती है. करंट जब लैग करती है वोल्टेज से, इट मीन्स, देखिए लीड करती है तो क्या था, हमने क्या पढ़ा था, कैपेसिटर होता है वो डिवाइस. जब इन फेज रहती है देन इट वाज अ रेजिस्टर, अ रेजिस्टिव डिवाइस ओनली, अ रेजिस्टिव सर्किट ओनली. एंड थर्ड वन वाज an inductive circuit in which the current lags behind the voltage. So X device is actually a inductor. Now next second case क्या है, if the same voltage is applied across another device Y, the same current flows but now it is in phase. अच्छा, second वाला जो है it is in phase. So see here
this is in phase. Y, for Y the current flows but now it is in phase. So when the current is in phase it is a resistive circuit. यानी Y क्या होगा, एक रेजिस्टर होगा, X एक इंडक्टर होगा. ये तो हमें क्लियर हो गया, यानी पहला वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया. नाउ सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट व्हेन द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y. नाउ सी solution. So first part can be written as X is, आप रीजन भी लिख के लिख सकते हैं, X is an inductor, Y is a resistor. Now second part, this one is first. Now second part, see, second part saying calculate the current flowing in the circuit, when the same voltage is applied across the series combination of X and Y. So we are talking about the series combination of X and Y. So firstly we need some quantities to just because we want to calculate the current, तो इसका मतलब हमें इसके कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस चाहिए और ईएमएफ चाहिए. ईएमएफ तो खैर पता ही है, रेजिस्टेंस चाहिए. रेजिस्टेंस, और जब एलआर सीरीज सर्किट है तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो क्या होगा, इम्पीडेंस होगा. देन वी नीड इम्पीडेंस. इम्पीडेंस के लिए हमने पढ़ा था ये जो कैपेसिटिव इंडक्टर है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, एल का कंट्रीब्यूशन और आर का कंट्रीब्यूशन होगा रेजिस्टेंस, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इम्पीडेंस होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन. सो वी कैन, आई एम मेकिंग अ रफ फिगर, इंडक्टर एंड देन रेजिस्टर. इफ इट हैज इंडक्टेंस एल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, एंड दिस इज आर, तो सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी एक्सएल प्लस आर ओनली. लेकिन इम्पीडेंस है, तो इम्पीडेंस के लिए कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो तो इम्पीडेंस के लिए हम करते थे इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एल आर सर्किट एक्स, नहीं इसको Z से रिप्रेजेंट करेंगे. Z इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्सएल square plus r square. So this will be so we need XL and R separately, तो X और R भी तो निकाल लेते हैं पहले. XL can be written as XL is equals to, just because it is inductive reactance, तो इंडक्टेंस और रिएक्टेंस का देखिए, यहाँ इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, 220 वोल्ट. करंट कितनी है, 0.25 एम्पियर, तो 220 वोल्ट और 0.25 एम्पियर कितना हो जाएगा, 25/100 लिख सकते हैं. 100 मल्टीप्लाई 25, ये 880 ओम्स. ठीक है, तो एक्सएल आ गया. आर विल बी अगेन 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 0.25, क्योंकि सेम करंट ही फ्लो करती दिखाई है. Then it is also 880 ohm. Then this Z will be root over of 880 ohm square plus 880 ohm square. So Z will be 880 स्क्वायर है, कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा तो केवल 880 आएगा, और रूट ओवर में 1 + 1 2 √2. So this is what the impedance is. Now we have got the impedance. और अगर इम्पीडेंस पता हो तो करंट क्या होता है, वोल्टेज जो भी अप्लाइड वोल्टेज है डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस. सो इट इज आई इफेक्टिव, जो करंट होगी इट इज इक्वल्स टू वी इफेक्टिव डिवाइडेड बाय जेड. ठीक है, तो करंट किसके निकालनी है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट.
वी इफेक्टिव बाई जेड, वी इफेक्टिव दिया है 220 वोल्ट और जेड हमने निकाल लिया 880√2, सो दिस कुड बी 220 कैंसिल, 0 कैंसिल आउट, 1/4 और √2, 1/√2 कितना होगा, 1/√2 को 1/1.414, इसको हम लिख सकते हैं 1/4√2, तो √2 की जगह पुट कर दीजिएगा 1.414, सॉल्व करेंगे तो ये कुछ वैल्यू 0.1 या 0.155 के अराउंड में आएगी। सो दिस विल बी अवर आंसर, ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। Here we have to calculate the current drawn by the primary of a 90% efficient transformer which steps down 220 volt to 22 volt if the output resistance is 440 ohm। देखिए रेजिस्टेंस दिया है आउटपुट का, सेकेंडरी वोल्टेज दिया है, प्राइमरी वोल्टेज दिया है, वी नीड द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी। ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर to the input power, solving it we can also write output power can be written as secondary power or power at secondary to the primary power, so can be written as power just because it is secondary power, so secondary voltage multiplied by secondary current, primary voltage multiplied by primary current. So I am putting the values, secondary voltage is 22 volt, primary voltage is 220 वोल्ट, प्राइमरी करंट हमको निकालनी है, सेकेंडरी करंट अभी हमको नहीं पता IS, और प्राइमरी करंट नहीं पता। फॉर सेकेंडरी करंट मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, फॉर सेकेंडरी करंट। देखिए सेकेंडरी के लिए हमें रेजिस्टेंस दे दिया है, सेकेंडरी का वोल्टेज दिया तो करंट निकल ही जाएगी। इफ आई से इट इज IS देन इट इज वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाई सेकेंडरी पे रेजिस्टेंस कितना है, देन इट इज 0, तो बच जाएगा 2244, 1/20 एम्पियर। पुटिंग इट हियर, ईटा कितना दिया हुआ है 90%, तो 90% को ऐसे नहीं लिखेंगे, 90/100 लिखेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे 90/100 और यहाँ पे अब देखिए सारी वैल्यूज़ में से हमें 3 मिल गई हैं, 220, सेकेंडरी 1/20 एंड प्राइमरी IP। तो प्राइमरी एक तरफ ले लें, बाकी एक तरफ, तो IP इज इक्वल्स टू 22/220 मल्टीप्लाइड बाई 1/20, ये हो गया 100 ऊपर, ये हो गया 90 नीचे। सो सॉल्विंग इट वी विल गेट 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 22 कैंसिल आउट, सो इट इज कहीं कुछ गड़बड़ है, 22 100 22 20 90, 0 0 0 0 कैंसिल आउट है और ये होगा 22 डिवाइडेड बाई 22, 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट, यहाँ पे ये दोनों तो ख़त्म हो गया, 1/180 एम्पियर। ठीक है, 20 100 20 0 0 0, तो आंसर जो भी देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा इसको प्रॉपर, जो भी आ रहा है ये हमारी करंट होगी। इसको एक बार सॉल्यूशन पूरा अपनी तरफ से भी चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल रिवाइज सम प्रीवियस टॉपिक्स ऑल्सो। थैंक यू।